Hello students, hi, hope you are doing good and then you have been studying and watching all these videos and learning something through all these videos. So I have been getting certain queries from the people that I have not been posting whiteboard videos, that though definitely I have postponed them, but they are already in the pipeline. I am already working on them and I will be there with few videos of the whiteboard as well, which you consider they are the live ones, though it is also the live, but I will definitely come out with those. And then I have certain agenda for other aspects of your learning English, the pronunciation, and then your career counseling, and then your vocabulary skills on the other fronts. So we are working on that, and definitely I will be coming out with certain videos in quick successions in the coming time. So to begin with this particular journey of completing our WordParm ADC, we are at 29th session today, almost 3/4 of the book. So that is something, those who have been following me up in that way, they have done a tremendous job. Let's begin this session 29. The French drill master. French drill master, you know the drill master, the one who is there in the PT parade and all those things, we call them drill masters, okay. And then French drill master Jean Martinet was the Inspector General of Infantry during the reign of King Louis XIV. Okay, last video if you have seen, where we were talking about Martinet, the one who is very strict teacher, instructor, and who wanted everything to be perfection and followed, rule must be followed and line to be towed, something of this kind was written. I was telling you that we'll talk about this in the next session. So here we are talking about Jean Martinet is the name of the fellow, Inspector General of Infantry. Infantry, you can see here, there's a picture also, जो normally पैदल वाले जो जवान होते हैं उनको infantry कहते हैं. So foot soldiers collectively. So Jean Martinet was the Inspector General of Infantry during the reign of King Louis XIV. Reign होता है power, rule kind of thing, and a stricter, you can understand now, more fanatic drill master. More fanatic, आपको पहले बता रखा है fanatic कौन, जिहादी टाइप का, एक धुन सवार हो जाती है. तो more fanatic drill master France had ever seen. ऐसा कभी फ्रांस ने नहीं देखा है. France had never seen. It was from this time that the French army's reputation for discipline dated. यहाँ से ही माना जाता है कि फ्रेंच आर्मी का डिसिप्लिन शुरू होता है. डेटेड मीन्स उस दिन से हम मानते हैं कि यहाँ इतने ज़्यादा डिसिप्लिन होना शुरू हुआ. And it is from the name of this Frenchman that we derive our English word Martinet. So this word has no origin but the name of someone, the attribute he had. So English is like that. आप ये नहीं कह सकते जी हाँ अब इसका रूट वर्ड बताओ, भाई ऐसे ही है, आपको याद करना पड़ेगा. मार्टिनेंट है. द वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड इन डेरोगेटरी सेंस. हाँ, ये भी बड़ी बात है. डेरोगेटरी मतलब शोइंग क्रिटिकल एंड डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड. कोई बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके में यूज़ नहीं होता किसी के लिए, तो इज यूज इन अ डेरोगेटरी सेंस एंड जनरली शोज रिजेंटमेंट एंड एंगर ऑन द पार्ट ऑफ द यूज़र. यानी जो उसके इन्फेंट्री में लोग होते होंगे, जो जवान हैं, जो सोल्जर्स हैं, दे मस्ट बी क्रिबिंग ऑल द टाइम कि यार इतना स्ट्रिक्ट हमारा कमांडर है. बट ठीक है, यूज़ होता है. द सेक्रेटरी हु कॉल्स हिज बॉस अ मार्टिनेंट. कोई सेक्रेटरी भी अपने बॉस को मार्टिनेंट कह सकती है. द वाइफ हु अप्लाइज द एपिथेट, यानी एपिथेट होता है एडजेक्टिव, किसी का एडजेक्टिव किसी पर अप्लाई कर देते हैं. मतलब हस्बैंड को वो कह रही है कि ये मार्टिनेंट है. द वाइफ हु अप्लाइज द एपिथेट टू हर हस्बैंड. द वर्कर हु दस रेफर्स टू द फोरमैन, जो फैक्ट्री में काम करता है वो अपने सुपरवाइजर को ऐसे बोलते हैं. दीज स्पीकर्स ऑल शो देयर कंटेम्प्ट, डिसरिस्पेक्ट, यू कैन से काइंड ऑफ थिंग ना. आपको पता है स्कॉर्नफुल काइंड ऑफ थिंग हो जाता है. फॉर द एक्सेसिव इनह्यूमन डिसिप्लिन टू विच दे आर आस्क्ड टू सबमिट. आस्क्ड टू सबमिट मतलब उनको वो मानना पड़ता है. यानी ये लोग जो हैं अपने बॉस के बारे में ये वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि द फेलो इज़ यूजिंग एक्सट्रीम डिसिप्लिन इन द vicinity, in the area where they have been working, whether it can be army, it can be secretary boss, can be wife also, it can be factory also. तो मार्टिनेंट वही होगा जो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर होगा, बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा, उसको हम मार्टिनेंट कह सकते हैं. लेकिन ये मार्टिनेंट हमेशा
थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल, उसमें कड़वाहट वाली टोन होती है, डेरोगेटरी सेंस में यूज होता है इसको। सिंस मार्टिनेट कम्स फ्रॉम ए मैन्स नेम, in the brief intermission which follows we shall discover that a number of picturesque English words are similarly derived. We will be reading one more chapter afterwards. जब हम करेंगे तो you realize कि यार उसमें कई सारे ऐसे वर्ड हैं जो वैसे किसी जगह के नाम से बन गए, किसी पर्सन के नाम से बन गए, तो वो कहते हैं कि यार वहाँ पर जाके हम देखेंगे कई और भी वर्ड ऐसे बनते हैं। There are no related forms built on the same root. ऐसा नहीं है कि रूट से बने हों। There is an adjective martinetish and another noun form martinetism आप लगा सकते हैं, but these are used only rarely, hardly कभी यूज़ करते हैं, बट हम कह सकते हैं इस तरीके की प्रैक्टिस को क्या बोलेंगे, इस तरीके की प्रैक्टिस को मार्टिनेटिज्म बोलेंगे, काइंड ऑफ थिंग, ऐसा कहा जा सकता है। पिक्चर्स क्यू जो बहुत लाइवली पिक्चर आपके सामने क्रिएट कर देते हैं, जिसे कहते हैं वर्थ वॉचिंग, काइंड ऑफ स्पेक्टेकुलर हो जाता है, विजुअली अट्रैक्टिव इन ए क्वांट और चार्मिंग मैनर, दैट इज पिक्चर्स क्यू होता है। सो ग्रीक फिग शावर, बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिया है, ग्रीक फिग शावर। अगर आपने फिग देखा हो तो ऐसा वाला फिग होता है, वन कैन वेरी वेल सी, खाने की ऐसी एक आइटम है, इंडिया में तो कम मिलती है, मिल जाती है, अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, फिग शावर होती है। साइकोफेंट कम्स टू अस फ्रॉम द ग्रीक्स। साइकोफेंट हमने पिछली बारी पढ़ा था, बूट लेकर, अगर आपको याद है, चमचा जो बोलते हैं, ठीक है। तो साइकोफेंट कम्स टू अस फ्रॉम द ग्रीक्स। हाउ कम? अकॉर्डिंग टू सिफिलिस डिक्शनरी ऑफ वर्ड ओरिजिन्स, वहाँ की डिक्शनरी में वो क्या कहते हैं, द ग्रीक्स हैड अ नेम फॉर इट, द ग्रीक्स हैड ए नेम फॉर इट, कैसे? फिगशार, जो साइकोफेंट को वो फिगशार बोलते थे। अब क्यों फिगशार बोलते थे ये समझ लेते हैं। साइकोफेंट इज फ्रॉम ग्रीक साइकॉन, फिग, एंड फेनिन, टू शो। इसका मतलब क्या है कि अगर आप देखेंगे तो साइकोफेंट कहाँ से वर्ड से आया, अगर आप रियलाइज करेंगे तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, साइकॉन, जिसका मतलब फिग है, एंड फेनिन टू शो है। ओके, दिस वॉज द फेलो दैट इन्फॉर्म द ऑफिसर्स इन चार्ज व्हेन, यानी ये वो आदमी था जो अपने ग्रुप की ही बात ऑफिसर इंचार्ज को जाके बताता था। ऑफिसर इंचार्ज व्हेन द फिक्स इन द सेक्रेड ग्रोव्स वर बीइंग टेकन, जब वो फिक्स डेवलप हो जाती थी तो कोई ना कोई उसको ले जा रहा था यार चोरी से करके या बेचने के लिए, तो वो इंचार्जेस को बता देता था कि देखो यार फिक्स बन गई हैं और वो लोग लेके जा रहे हैं, तो अपने लोगों की कंप्लेंट कर देता था। और व्हेन दी स्मायरा फिग डीलर्स वर डॉजिंग द टैरिफ, या फिर वहाँ के जो लोग थे एक पर्टिकुलर ट्राइब के, वो जो है वहाँ के टैरिफ को बचाने की कोशिश कर रहे थे, यानी वो इलीगली काइंड ऑफ थिंग, विदाउट इन्फॉर्मिंग दी अथॉरिटीज़, वो ऐसा कुछ कर रहे थे। बट हु वॉज इन्फॉर्मिंग दी अथॉरिटीज़? द फेलो फ्रॉम विद इन द ग्रुप ही वॉज इन्फॉर्मिंग दी अथॉरिटी। तो फिर वो क्या हो गया, वो तो घर का भेद ही हो गया काइंड ऑफ थिंग, यू नो। लेकिन आपकी नकल, आपकी कंप्लेंट कौन कर रहा है? अपना ही आदमी कर रहा है। क्यों? वो कि वो बॉसेस की चमचागिरी कर रहा है। वी से दैट पर्सन इज नोन एज साइकोफेंट। ओके, साइकोफेंट आप समझ गए। ए 2D ए सर्वाइल फ्लैटरर होता है। ग्रोव नॉर्मली पेड़ों का झुंड होता है जो बड़े ऐसे, यू कैन से कि अगर एक बड़ा एक प्रॉपर तरीके से अगर बनाया जाए इस तरीके से, ये सारे ट्रीज़ का एक आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया काइंड ऑफ थिंग, यू नो, तो दैट वी कैन से वी कॉल इट एज ग्रोव। अरेंजमेंट होता है, मतलब नॉर्मली फिक्स ऐसे लगाई जाती हैं काइंड ऑफ, तो ग्रोव होता है। डॉज करना, आपको डॉजिंग टेबल बचपन में सिखाए थे, याद है? तो डॉज करना वो धोखा देना होता है। और टैरिफ तो खैर यू नो टैक्स होता है ना। दस ए साइकोफेंट में अपीयर टू बी ए सॉर्ट ऑफ ग्रास। ग्रास नीचे मैंने लिखा है पुलिस इन्फॉर्मर। ओके, जैसे कहते हैं पुलिस इन्फॉर्मर होता है, उसको ग्रास भी बोलते हैं इंग्लिश में, वर्ड याद रखिएगा। दस ए साइकोफेंट में अपीयर टू बी ए सॉर्ट ऑफ ग्रास सिंस द लेटर करीज द फेवर। ये वर्ड हमने काफ़ी रिसेंटली 2-3 चैप्टर्स में यूज़ किया। करी फेवर करना, किसी को बहुत ज़्यादा उसकी चमचागिरी करना, सो दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट सम बेनिफिट ऑफ प्रॉफिट ऑन द लेटर स्टेजेस। तो सिंस द लेटर, लेटर मतलब वो जो आदमी जो कंप्लेन कर रहा था, सिंस द लेटर करीज द फेवर ऑफ द पुलिस ऑफिशियल्स बाय इन्फॉर्मिंग ऑन हिज फेलो क्रिमिनल्स, अपने लोगों की शिकायत कर देता है। साइकोफेंट्स में यूज दिस मीन्स ऑफ इनग्रेशिएटिंग
themselves, अपने आप को बड़ा लोयली कर देते हैं. इंग्रेशिएट करना, bring oneself into favor with someone by flattering or trying to please them. Obsequious हमने एक वर्ड पढ़ा था, यानी बहुत ज़्यादा फ्लैटरी करना. तो इसमें लगा रहा है क्या वर्ड, मीन्स ऑफ ingratiating themselves. हमेशा ingratiate के साथ हमेशा सेल्फ वर्ड यूज़ होता है. तो ingratiating themselves with influential citizens of the community, यानी वो कम्युनिटी के जो रिच लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनकी वाहवाही करते रहते हैं ऐसे लोग. और दे में यूज़ फ्लैटरी, सर्वाइल अटेंशन, सर्वाइल मतलब सर्वेंट लाइक, यू कैन रीड द मीनिंग देयर, और एनी अदर फॉर्म ऑफ इंसिनुएटिंग देमसेल्व्स इनटू समवन्स गुड ग्रेसेस. इंसिनुएट करना, सजेस्ट समथिंग बैड in an indirect or unpleasant way. So क्या, servile attention or any other form of insinuating themselves into someone's good graces. तो किसी और की वो इंसल्ट करता है ताकि वो किसी के गुड ग्रेस में रह सके. A sycophant practices sycophancy and has a sycophantic attitude. All three forms of the word are highly uncomplimentary. Uncomplimentary मतलब जिसको derogatory kind of thing आप कह सकते हैं, negative और insulting हो जाती है. Use them with care. किसी को ऐसे कहने से पहले दो बार सोचें. देन मटेरियल मे बी सो डेलिकेट और फाइन इन टेक्सचर. कोई भी कपड़ा हो मान लीजिए, तो अब सिल्क अलग होती है और साटन अलग होता है और कॉटन अलग होता है, नहीं. तो मटेरियल मे बी सो डेलिकेट और फाइन इन टेक्सचर दैट एनीथिंग बिहाइंड इट विल शो थ्रू. ऐसा हो सकता है कि कई ऐसे क्लोथ्स जिसमें आप सी थ्रू काइंड ऑफ कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली सी थ्रू नहीं, ग्लास की तरह नहीं, बट हाँ हल्का हल्का फीलिंग आती है. यू कैन सी आफ्टरवर्ड्स कि उसके पीछे क्या ऑन दी अदर साइड ऑफ द क्लॉथ. द ग्रीक प्रीफिक्स डाया, नाउ यू कैन से द ग्रीक प्रीफिक्स डाया मीन्स शो, हैंस मटेरियल इज कॉल्ड डायफनस. ऐसे वाले मटेरियल को डायफनस बोलते हैं. डू नॉट यूज द एडजेक्टिव इन रेफरेंस टू ऑल मटेरियल. सभी कपड़ों के लिए याद नहीं लगा सकते आप, लेकिन हाँ ऑल मटेरियल. ग्लास डायफनस, मान लीजिए सारे जैसे ग्लास है उसको डायफनस नहीं कह सकते. इवन दो यू कैन सी राइट थ्रू इट. अब आप कहेंगे डायफनस की डेफिनेशन, तो नहीं, ग्लास में तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है. नाउ यू कैन सी द फिगर द गर्ल विद काइंड हर दुपट्टा एंड ऑल, तो हल्का सा दिख रहा है जिसे कहते हैं जैसे. तो डायफनस, इवन दो यू कैन सी राइट थ्रू इट, but only material that is silky, gauzy, filmy and in addition transparent or practically transparent. आप देख सकते हो जो फिल्मी मटेरियल है, ऐसी अपनी प्लास्टिक की शीट्स देखी हैं, ऐसी गॉजी मटेरियल देखा है, हल्का हल्का तो दिखता ही है. ऐसे आपने कपड़े घर में देखे हैं जो हल्का सा दिखता है, ठीक है. दे आर नोन एज व्हाट यू कॉल, दे आर नोन एज डायफनस. ओके, तो आप इसमें दिख रहा है लेकिन पूरा नहीं दिख रहा. तो वो कह रहा है कि ग्लास को मत मान लीजिएगा. Even though you can see right through it, but only material that is silky, gauzy, filmy and in addition transparent or practically transparent. The word is often applied to female garments, nightgowns, negligees, etc. ऐसे जो नाइट गाउन्स वगैरह होते हैं वो भी कपड़े तकरीबन ट्रांसपेरेंट होते हैं. तो वन कैन वेरी वेल सी कि इस तरह के कपड़ों को हम क्या बोलते हैं, नेग्लिजीज. वो वुमेन नाइट गाउन्स हैं और ये ऐसे मेटेरियल को हम डायफनस कहते हैं. Those who are science students, they have read this word, this term many a time during their studies. Just for one's own amusement, यानी आप कुछ करते हैं सिर्फ अपने ही amusement के लिए, ऐसा मान लें. Dilettante, ये पिछली बार भी हमने वर्ड पढ़ा था, उसको फिर एक्सप्लेन कर रहा है. Dilettante is from the Italian verb dilettare. The dilettante paints, writes, composes, plays a musical instrument or engages in scientific experiments purely for amusement. याद है मैंने कहा था, उसने पिछली बार भी लिखा था कि अगर आप कुछ कमा रहे हो तो आपके पास हॉबी होती है कि चलो पैसे भी हैं, तो यू वांट टू नर्चर काइंड ऑफ हॉबी, तो आप उसे कभी कभी करते हो, ठीक है. नॉट टू मेक मनी, बिकम फेमस और सेटिस्फाई अ डीप क्रिएटिव अर्ज. तकरीबन द लेटर आई प्रिज्यूम being the justifications for the time that professional artists, writers, composers, musicians, poets and scientists spend at their chosen work. तकरीबन देखा जाए तो जितने भी ये लोग हैं वो सब क्रिएटिव अर्ज के लिए करते हैं जो डायलेटेंटे होते हैं, लेकिन जो
लेटर लोग हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, दे हैव टू मेक सम मनी, वो उसके लिए करते हैं। तो उसका इंटरेस्ट नहीं होता डिलेटेंटे का कि वो पैसे कमाए, वो सिर्फ हॉबी के लिए कर रहा है। ओके, आ डिलेटेंटिश एटीट्यूड इज सुपरफिशियल। ऑब्वियसली आपका बहुत इंटरेस्ट नहीं है, मान लीजिए आज आपकी क्लास है और आज आप बाय द वे आपके फ्रेंड आ रहे हैं तो आप कहते हैं चल यार छुट्टी कर लेता हूँ, तो वो फिर डिलेटेंटिश अप्रोच हो जाती है। एटीट्यूड इज सुपरफिशियल। Unprofessional dilettantism is superficial, part-time dabbling in the type of activity that usually engages the full time and energy of the professional artist or scientist. Obviously, कोई गिटारिस्ट है जो प्रोफेशनली काम करता है या कोई सिंगर है जो प्रोफेशनली काम करता है, तो नेचुरली फिर वो आपके आने पर नहीं रुकेगा, वो अपना काम करेगा। अगर उसको मान लीजिए प्रैक्टिस करना है एंड दिस इज द टाइम डिवाइस, तो ही विल नॉट वेट। बट हाँ, आप और मैं जो कर रहे हैं कि चलिए यार आज रहने देते हैं, कल कर लेंगे, इट इज़ ओके काइंड ऑफ थिंग। तो ये जो लोग हैं जो अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं लेकिन बहुत प्रोफेशनली करते, उस पर्सन को हम क्या बोल सकते हैं, डिलेटेंटे होता है। वी हैव रेड अबाउट दैट, नाउ ही इज डिस्क्राइबिंग लिटिल मोर टू यू। डैबलर भी हमने पीछे पढ़ा था। डू नॉट कन्फ्यूज, नाउ ही वॉन्ट्स टू एक्सटेंड द मीनिंग। डू नॉट कन्फ्यूज डिलेटेंटे who has a certain amount of native talent or ability with the tyro। एक ऐसा टायरो नाम भी हमने वर्ड पढ़ा जिसको हम नाइव कहते रहे, अमेचर कहते रहे। नाउ ही इज ट्राइंग टू टेल यू द मीनिंग टायरो कौन है। विद टायरो, हु इज द इनएक्सपीरियंस्ड बिगनर इन सम आर्ट बट हु मे बी फुल ऑफ एम्बिशन, ड्राइव एंड एनर्जी। अब मेरे पास तो वो ड्राइव एनर्जी नहीं थी ना यार, मैं जॉब करता था, मैंने कहा यार बचपन से गिटार नहीं सीखी थी, पैसे नहीं थे, अब मैं सीख रहा हूँ, तो ये तो मैं डिलेटेंटे हो गया। लेकिन कोई ऐसा जो बिगनर है जिसमें ड्राइव है कि भैया मुझे तो गिटारिस्ट ही बनना है, मुझे तो पियानिस्ट ही बनना है, या मुझे तो यही करना है, और वो बिगनर जरूर है मेरी तरह ही, बट वो बिगनर है, उसके अंदर वो फायर है, ही विल डेडिकेट हिमसेल्फ इनटू डूइंग दिस। ऐसा पर्सन, बट हु मे बी फुल ऑफ एम्बिशन, ड्राइव एंड एनर्जी। टू कॉल ए पर्सन ए टायरो इज टू इम्प्लाई दैट ही इज जस्ट स्टार्टिंग इन सम आर्टिस्टिक, ही इज जस्ट स्टार्टिंग इन सम आर्टिस्टिक, साइंटिफिक और प्रोफेशनल फील्ड, यानी उस फील्ड में वो अपना करियर शुरू कर रहा है। करियर शुरू कर रहा है इसका मतलब वो तो डेडिकेट ही होगा। ही इज़ नॉट मच गुड येट बिकॉज ही इज़ नॉट हैड टाइम टू डेवलप हिज स्किल इफ एनी। ऑब्वियसली उसको अभी शुरू हुआ है तो उसके बाद ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। द डिलेटेंटे यूजुअली हैज़ सम स्किल बट इजंट डूइंग मच विद इट। डिलेटेंटे के पास स्किल हो सकती है लेकिन वो फिर उसको यूज़ नहीं करता है। On the other hand, anyone who has developed consummate skill, consummate हमने पहले भी वर्ड पढ़ा था, complete, यानी अगर आपने वो स्किल सीख ली, आपको वो पूरी आर्ट ढंग से आ गई। On the other hand, anyone who has developed consummate skill in an artistic field, generally allied to music, is called a virtuoso। अगर मान लीजिए वो म्यूज़िक में आ गया, मैं इतनी जैसे गिटार बोल रहा हूँ, वो पेंटिंग भी हो सकती है, मान लीजिए अगर म्यूज़िक का ही मान लीजिए वो एक्सपर्ट हो जाए तो उसे हम फिर वर्चुसो बोलते हैं। ओके, लाइक Yehudi Menuhin on the violin or Arthur Rubinstein on the piano। Pluralize virtuoso, अगर हम virtuoso वर्ड को प्लूरलाइज करना चाहें तो virtuosos हो जाता है। ओके, ये दो फॉरेन, एक वायलिनिस्ट का नाम दिया है और एक पियानिस्ट का नाम दिया है, उस तरीके से बन जाएंगे जो इसके एक्सपर्ट होते हैं। और इफ़ यू विश टू साउंड मोर सोफिस्टिकेटेड, गिव इट कॉन्टिनेंटल फॉर्म वर्चुसी। कॉन्टिनेंटल फॉर्म यूरोपियन कंटेंट से, कॉन्टिनेंट से रिलेटेड होती है, तो आप उसको वैसे वाले प्रोनाउंसिएशन भी दे सकते हैं। सिमिलरली द प्लूरल ऑफ डिलेटेंटे इज ईदर डिलेटेंटीज और डिलेटेंटी। माई प्रोनाउंसिएशन कैन बी समवेयर हियर एंड देयर, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस French accent and all, so that is not so, that is also not the concern of as long as we are reading this book for the sake of acquiring word power, though we should know. So if you are peculiar about the pronunciation, you will have to refer to some site where they are giving you the exact pronunciation. So if any error there, forgive me for that. The I beginning, I ending for the plural is the Italian form and is common in musical circles। अगर आप पीछे देखें, जो हमने पीछे I लगाया था, अगर आप देखिए हमने क्या बोला था, डिलेटेंटी कर दिया था ना, डिलेटेंटीज का। तो ये जो I लगाने का फंडा है, what is this? He says the I ending for the plural is the Italian form and is common in musical circles। म्यूजिक सर्कल में काफ़ी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, libretto, the story of an opera may be pluralized as liberty,
कंसर्टो अ फॉर्म ऑफ म्यूजिकल कॉम्पोजिशन इज़ प्लूरलाइज्ड कंसर्टी। अगर आप देखें मैंने ओपेरा का मीनिंग भी दिया है और कंसर्टो का भी दिया और पिक्चर भी दिखाया। ओपेरा इज़ अ काइंड ऑफ ड्रामा, म्यूजिशियन भी होते हैं, यू कैन सी देयर, जो म्यूज़िक भी प्ले करने वाले वहीं बैठे रहते हैं, फिर एक्ट भी हो रहा है, यू कैन वेरी वेल सी एक्ट इज़ देयर, इसको ओपेरा कहते हैं। बट हाँ, ये वाला जिसमें आप सिंग करते हैं और बाकी सब लोग प्ले कर रहे होते हैं आपके लिए, आपके गाने के ऊपर सम काइंड ऑफ थिंग, दैट इज़ कंसर्टो हो जाता है। सो if you pluralize it, it turns out to be concerti. However, the angelicized librettos and concertos are perfectly correct also. अगर आप लोग अगर एंजेलिसाइज्ड की बात करें तो कहीं ना कहीं यू नो नेटिव ऑफ द ब्रिटिश वी से एंग्लोसाइड वाली जो आपको पता है, ठीक है। तो ये एंजेलिसाइड का मतलब हुआ यानी ब्रिटिश, जो लिबर्टोज हैं और कंसर्टोज हैं ये भी चलेगा। और ये आई वाला तो एनीवे उसने बता ही दिया कि वो इटालियन होता है, आप चाहें तो इटालियन में लिखें, लिबर्टोज भी लिख सकते हैं, कंसर्टोज भी लिख सकते हैं, आर परफेक्टली करेक्ट ऑल्सो। लिब्रेटो इज प्रोनाउंस्ड एज लिब्रेटो और लिब्रेटे, कंसर्टो इज सो एंड कंसर्टे। सूट यू योर प्लूरल फॉर्म आई वुड सजेस्ट टू दी सोफिस्टिकेशन ऑफ योर ऑडियंस। डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस क्या है, तो अकॉर्डिंगली वैसे आप वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, बट वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इट इज़। ओके, नाउ मैस्कुलिन वुमेन। वुमेन वैसे तो हम मानते हैं वुमेन आर वेरी स्लेंडर लुक्स, यू नो, बड़ी डेलिकेट लुक्स की होती हैं, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, मैस्कुलिन वुमेन कौन? विरागो कम्स ऑडली एनफ फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉर मैन, वर। ये जो वर वर्ड है ये मैन के लिए यूज़ होता है, बट वहीं से वर्ड बनाया है विरागो। परहैप्स द डेरिवेशन इज़ नॉट सो ऑड आफ्टर ऑल। क्यों कि ये डेरिवेशन कोई ऑड नहीं लग रही, क्यों? ए विरागो फार फ्रॉम बीइंग स्टीरियोटिपिकली फेमिनाइन, जैसे हमने बोला कि सिलेंडर लुक्स होती हैं, धीरे बात करेंगी, बड़ा इनोसेंट लुकिंग होगी, काइंड ऑफ शाई, ऐसा नहीं होता। कह रहा है अ विरागो फार फ्रॉम बीइंग स्टीरियोटिपिकली फेमिनाइन, टिमिड, डेलिकेट, लो स्पोकन एटसेट्रा, स्टीरियोटिपिकली मैस्कुलिन। ये जो वुमेन होती है स्टीरियोटिपिकली मैस्कुलिन होती है इन पर्सनैलिटी, कोर्स, रफ, एग्रेसिव, लाउड माउथ, फिर टर्मेगेंट एंड हैरिडन आर वर्ड्स विद essentially the same uncomplimentary meaning as virago. Okay, to call a brawling woman, brawling मतलब झगड़ा करने वाली woman है virago, or termagant and a harridan is admittedly repetitious, एक ही बात होती है, but is successful in relieving one's feeling. ऐसे पर्सन जो होते हैं वो बड़ा एग्रेसिव होते हैं, ऐसी लेडीज़, और ये वर्ड सिर्फ लेडीज़ के लिए बना है, मैन के लिए नहीं है ये वर्ड, ध्यान रखिएगा। तो टिमिड तो आपको पता ही है, लैकिंग कॉन्फिडेंस होता है, डिफिडेंट बोलते हैं, मैस्कुलिन मैन लाइक है, कोर्स होता है COARC, मतलब जो मटेरियल है कोर्स है, सोफे का जो आपका कपड़ा होता है वो कोर्स हो जाता है। लाउड माउथ पहले भी पढ़ चुके हैं। टर्मेगेंट इज़ अ हार्श टेम्पर्ड और ओवर बियरिंग वुमन है, ओके, यू कैन अंडरस्टैंड। एंड हैरिडन और स्ट्रिक्ट, बॉसी और बेलिजरेंट, बेलिजरेंट आप जानते हो जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहे, वैसी वाली वुमेन। अनकॉम्प्लीमेंट्री हमने 4-5 बार पढ़ लिया ये वर्ड आज में, कि यानी वो थोड़ा नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। और ब्रॉल इज़ काइंड ऑफ झगड़ा करना होता है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ वुमेन इज़ नोन एज व्हाट, विरागो। तो अब आप समझ गए कि किसी वुमेन के लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, विरागो भी यूज़ कर सकते हैं, ओके, एंड देन व्हाट यू कॉल टर्मेगेंट यूज़ कर सकते हैं, एंड हैरिडन कर सकते हैं। एक वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था, श्रू भी यूज़ कर सकते हैं। सब वो जो लड़ने वाली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वुमेन हो उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। सॉरी टू से इफ समवन फील्स कि यार ये वुमेन के लिए, बट इंग्लिश इज समथिंग दैट वे वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड। कहीं ना कहीं इसमें वही जिसे हम बोलते हैं पैट्रियार्कल टच है। तो मैनी वर्ड्स आर देयर, दे आर डेरोगेटरी और दे आर मेड दैट वे फॉर वुमेन। मैन के लिए कम वर्ड मिलेंगे आपको ऐसे। सो वी रियली नीड टू लर्न वर्ड एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग partial or impartial, let's understand that. The old man, the old man. निकोलस शॉविन बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया उसने, हालांकि इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं।
निकोलस शॉविन, सोल्जर ऑफ द फ्रेंच एम्पायर, सो वॉसिफियरस, याद है वॉसिफियरस वॉइस और फेरो कैरी करना, वॉसिफियरसली एंड अनसीजिंगली यानी बिना रुके हुए एयर्ड हिज वेनरेशन रिस्पेक्ट ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे दैट ही बिकेम द लॉफिंग स्टॉक ऑफ ऑल यूरोप। ये उसका कोई जूनियर था और जो वो नेपोलियन बोनापार्टे की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता था, बहुत ही तारीफ़ करता था और सब लोग जानते थे कि भैया ये तो उसके लिए एक वर्ड भी नहीं सुन सकता इधर उधर। तो ही हैड बिकम अ लॉफिंग स्टॉक काइंड ऑफ थिंग, लोग उसका मजाक बनाते थे कि भैया तो उसका पक्का वाला चमचा है, जो भी कुछ कह सकते होंगे। देयरफॉर एन एग्जैजरेटेड एंड ब्लटेंट पैट्रियट, ऑब्वियसली वो ब्लटेंट पैट्रियट हो गया, यानी वो ओपनली, जैसे कहते हैं ना ब्लटेंट होता है ओपन, सो विदाउट शाइंग काइंड ऑफ थिंग। So it has not been written there, but blatant patriot was known as a chauvinist. इसके बारे में हम पहले एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं। Is known as chauvinist। अब देखिए वो chauvinist से वर्ड आया है, अगर आप बोलेंगे ना तो मार्टिनेट जहाँ से आया था, ये chauvinist वर्ड भी वहीं से निकल कर आया है। And still is today, chauvinism by natural extension applies to blatant veneration of or boastfulness about any other affiliation besides one's country। कंट्री के अलावा अगर आप किसी और चीज़ का बहुत ज़्यादा इस तरीके से करते हैं, कंट्री के लिए तो माना जा सकता है कि हमारा मन में वैसे फीलिंग्स होती हैं, बट अदरवाइज़ किसी के लिए अगर ऐसा कुछ दिखा रहे हैं तो वी कैन कॉल इट शॉविनिज्म। आई गिवन यू एग्जांपल कि ये मेल शॉविनिज्म हो जाता है और लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म हो जाता है, काइंड ऑफ कि वो आप ये मानते हैं कि जो मेरे पास है वही सबसे अच्छा है, बाकी सब बेकार है। इसके बारे में हमने डिटेल एक पूरा पैराग्राफ लास्ट किसी 27 सेशन या 28 सेशन में वी हैव ऑलरेडी डन। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज, ये शॉविनिस्ट वर्ड भी कहीं ना कहीं किसी के नेम से आया है। टू बी पैट्रियाटिक इज टू बी नॉर्मली प्राउड ऑफ एंड डिवोटेड टू वंस कंट्री। टू बी शॉविनिस्टिक इज टू बी एग्जैजरेटेड सच प्राइड एंड डिवोशन टू एन ऑब्नॉक्शियस डिग्री। वही जो मैं आपसे कह रहा था कि कंट्री के लिए तो सभी को प्राइड होती है, लेकिन हाँ हद से ज़्यादा वाली फीलिंग आ जाए जहाँ पर आप दूसरे वाले को इंसल्ट करने लगें काइंड ऑफ थिंग, तो फिर ऑब्नॉक्शियस डिग्री पर आ जाता है, तो फिर वो शॉविनिस्टिक हो जाता है। होप यू अंडरस्टैंड द थिन लाइन। पैट्रियट होना अच्छा है, अपने बारे में प्राइड करना अच्छा है, लेकिन अपनी प्राइड के साथ किसी को डेरोगेटरी लुक डाउन अपॉन करने लग जाएं तो फिर वो शॉविनिज्म हो जाता है। होप यू अंडरस्टूड दिस। वी माइट डिग्रेस हियर, डिग्रेस मतलब थोड़ा सा हम डिविएट कर जाते हैं अपनी बात से, वही कहना चाह रहे हैं। वी माइट डिग्रेस हियर टू इन्वेस्टिगेट एनी एटोमोलॉजिकल साइट रोड डाउन विच द वर्ड पैट्रियाटिक बैकन्स। देखिए पैट्रियाटिक वर्ड का क्या इंडिकेशन देता है, मेक ए जेस्चर। पैट्रियाटिक क्या कहना चाहता है? पैट्रियाटिक इज बिल्ट ऑन द लैटिन वर्ड पेटर, पैट्रिस फादर, वंस कंट्री इज इन द सेंस वंस फादरलैंड। यानी अगर आप पैट्रियाटिक हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ, अगर आप पैट्रियाटिक होते हैं इसका मतलब क्या है, आप अपनी कंट्री के लिए लॉयल होते हैं। बट कंट्री के लिए लॉयल होने का मतलब इफ़ यू सैक्रिफाइस योर लाइफ इन द नेम ऑफ योर फादर, नॉट इन द नेम ऑफ योर मदर, दो वी कॉल इट मदर लैंड, बट फिर भी हम बोलते पैट्रियाटिक हैं बिकॉज वो मान रहा है ये फादर लैंड है। बिकॉज अल्टीमेटली जो लाइफ दैट वी हैव गॉट समवेयर, से लॉजिक समथिंग ऑफ दिस काइंड, लाइफ दैट वी गॉट इज बीन गिवन बाय अवर फादर, तो वी ओ अवर लाइफ टू द जनरेटर। जनरेटर इज द फादर, मदर इज ए रिसेप्टिव ऑर्गन काइंड ऑफ थिंग। तो दैट वे, हालांकि कहते हैं मदरलैंड है, मातृभूमि है, ये वो, लेकिन हम वर्ड जो बनाया है वो पैट्रियाटिक है, यानी वो पेटर से आया है, यानी बीइंग लॉयल टू योर फादर। तो कई सारी कंट्रीज़ भी अपने नेशनल एंथम में भी अपने आप को फादरलैंड ही बोलती हैं, यूरोप एंड ऑल यू माइट सी। ओके, सो दैट वे पेटर वर्ड हैज़ कम फ्रॉम देयर, एंड देन वहाँ से पेट्रीसाइड, पेटर्नल और सारे वर्ड आपने, पेट्रीमनी यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस, पेट्रियार्कल यू हैव हर्ड ऑफ इट। ओके, चलिए let us see what other interesting words are built on the same root। देखें पैट्रीमनी वर्ड बना है, अभी मैं नाम ही ले रहा था, एन इनहेरिटेंस फ्रॉम वंस फादर। अब देखो पैट्रीमनी में पेटर और मनी आ जाता है, ऐसा हम समझ लें। द मनी कम्स फ्रॉम द सेम रूट दैट गिव्स अस मनी, नेमली जूनो मोनेटा, द रोमन गॉडेस। अब इसके नाम से उन्होंने निकाला है, द रोमन गॉडेस हु गार्डेड द टेम्पल्स ऑफ फाइनेंस। The adjective is patrimonial, अंडरस्टैंडेबल है। इनहेरिटेंस जो आपको एंसेस्ट्रली जो भी मिलता है लेगेसी में या कुछ है, वो इनहेरिटेंस हो जाता है। आप देखिए ये भी किसी के नाम से ही वर्ड बना हुआ है, तो इसमें आर्गूमेंट नहीं कर सकते जी ये कहाँ से आया, भाई यहाँ से आया, याद कर लीजिए, दैट्स इट।
इतना ही वो कहता है कि आपको लर्न करना पड़ेगा. आई मे साउंड रूड बट दैट इज द लैंग्वेज वी हैव टू लर्न. Had it not been that important, we would not be studying. It is important, we really need to do this. और किसी और की लैंग्वेज है ना, हमें करना ही पड़ेगा. जैसे आपने, मैं किसी दिन भी किसी क्लास में बोल रहा था, यार ये वर्ड क्या है हिंदी में, कुछ लोग पढ़ सकते हैं शायद, प्रस्थान है. तो ये आपको कैसे पता ये प्रस्थान है, और प्रस्थान का मतलब क्या होता है? कोई लॉजिक है आपके पास का? कोई लॉजिक नहीं है, बस आपको याद है मतलब आपने याद कर रखा है ना. तो जैसे प्रस्थान जब लर्न कर रखा है, जैसे आपने प्रायश्चित लर्न कर रखा है, वैसे हस्ताक्षर लर्न कर रखा है, तो वैसे ही हम ये भी लर्न करते हैं. तो इसमें जब इंग्लिश करने लगते हैं तो हम इंजीनियर क्यों बन जाते हैं, या मैथमेटिक्स क्यों डालने लगते हैं, जिसका लॉजिक बताओ. मैं बार बार कहता हूँ, इंग्लिश हमें बनानी नहीं है, इंग्लिश हमें लर्न करनी है, जैसे आपने प्रस्थान लर्न किया था. सो देयर शुड नॉट बी एनी फीलिंग ऑफ कंटेम्प्ट फॉर ए लैंग्वेज. वन हैज़ टू बी रिसेप्टिव इफ यू वांट टू लर्न. सो इसलिए आप उसको बस लर्न करते रहिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा. एंड जिस दिन आपको आ जाएगा ना, यू विल बी फैसिनेटेड, यू विल डेफिनेटली से कि यार आई हैव लर्न समथिंग फैंटास्टिक. थोड़ा मुश्किल है, बस दैट्स द केसेस. लर्न करिए. अब आ जाए वर्ड, पेट्रोनाइमिक वर्ड होता है. क्या कहना चाहता है पेट्रोनाइमिक में? अब देखें तो पेट्रो वर्ड तो आ रहा है, नाइमिक वर्ड भी आ रहा है. देखें वो क्या बोलता है. ए नेम फॉर्म्ड ऑन द फादर्स नेम. हाँ, व्हाट नेम, जैसे सिनोनिम है ना, सिनोनिम में नेम वर्ड आता है ना, तो यहाँ पर भी नाइम तो वर्ड आ ही रहा है, और पेट्रो वर्ड भी आ रहा है, यानी वो नेम जो फादर के नाम से जनरेट हुआ हो, काइंड ऑफ थिंग. कितना लॉजिकल आंसर दिया उसने. फादर्स नेम लाइक जॉनसन. तो जॉनसन कितनी बारी बोलते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन का प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं, तो प्रैक्टिकली उसका मतलब क्या है, सन ऑफ जॉन. तो मार्टिनसन, देन एरनसन एट्सेट्रा, यानी ये वर्ड ऐसे उन्होंने अपने नाम बना लिए, फादर का नाम भी जोड़ लिया. हमारे हिंदू कल्चर में भी काफ़ी सारा है, साउथ में काफ़ी लोग अपने फादर के नाम भी लगते हैं. तो ये इस तरीके से उसने नेम में से नेम डिराइव कर लिया है. दी वर्ड कंबाइंस पेटर, अब आप देख ही रहे हैं, पेट्रिस विद द ग्रीक ओनाइमा नेम, यानी जो नेम है वो उसके लिए ओनाइमा वर्ड यूज़ किया है उसने, तो वहाँ पर ये वर्ड आ गया ओनाइमा, और यहाँ पर वर्ड आ गया पेटर. तो आप देख ही लोगे, ब्रेक करके देखो, यहाँ पर आराम से समझ आता है. पेटर और नाइमा, वन कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड. ओनाइमा प्लस द ग्रीक सिफिक्स प्रीफिक्स. देखिए ओनाइमा जिसको हमने नेम बोला था, अब ग्रीक सिफिक्स प्रीफिक्स सिन, आप जानती हैं जिसका मतलब विद होता है, तो फिर वहीं से वर्ड बन गया क्या, सिनोनिम. फिर वहीं से वर्ड बन गया एंटोनिम, जैसे ही आपने एंट लगाया, फॉर्म्स सिनोनिम. अ वर्ड ऑफ द सेम नेम, एटोमोलॉजिकली ए टुगेदर नेम. ओनाइमा प्लस प्रीफिक्स एंट अगेंस्ट फॉर्म्स एंटोनिम. नाउ यू नो एंटोनिम कैसे आया. अ वर्ड ऑफ अपोजिट मीनिंग एटोमोलॉजिकली एंड another but has a different meaning, meaning etymologically and against name. Anaima plus the word homos, very good. homos मतलब same kind of thing. तो अगर आप homos और naima जोड़ते हो तो आपका वर्ड बन जाता है homonym बन जाता है. homonym वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, a word that sounds like another but has a different meaning and spelling. bear, आप दोनों को बोल दे तो bear है. अब ये बेयर है, वो बेयर है. अब वो एक बेयर तो विदाउट क्लोज काइंड ऑफ थिंग होता है, एक बियर वाला बेयर होता है. अब झेलने वाला भी हो सकता है, या दूसरे वाला जो बेयर एनिमल होता है वो भी हो सकता है. वे एंड वे हो सकता है, टू एंड टू हो सकता है, टू भी हो सकता है. एटोमोलॉजिकली अ सेम नेम होता है. होमोनिम इज मोर एक्यूरेटली कॉल्ड होमोफोन. होमोनिम को हम होमोफोन भी बोलते हैं. अ कॉम्बिनेशन ऑफ होमोज, द सेम, एंड फोन मतलब साउंड, होमोफोन होते हैं. The adjective form of synonym is synonymous. And can you write the pronounce the adjective derived from antonym? तो अब समझ ही सकते हैं antonymous आ जाएगा. And then homonym का homonymous आ जाएगा, और homophone का homophonous आ जाएगा. Now I want to correct, जो यहाँ पर ये 3 लाइन में लिखा है उस वो मान रहा है कि homonym और homophone ऑलमोस्ट एक हैं. थोड़ा सा you really need to बी वेरी पेक्यूलियर इन दिस केस. आप उसकी बात समझ लीजिए, लेकिन यहाँ आ जाइए. वो ग्रामेरियन नहीं है जो लिख रहा है, वो लिटरेचर की बुक लिख रहा है. यहाँ के थोड़ा सा हम अपने आप को ठीक कर लें. होमोनिम क्या है? पोल और पोल सेम नेम होता है बट मीनिंग अलग हो जाता है. स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन मीनिंग अलग होता है. होमोनिम है, सेम नेम है.
पोल पोल, एक तो पोल ये वाला पोल हो गया जो लाठी वाला पोल हो सकता है, और फिर एक नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला भी पोल हो सकता है, पोल तो वैसा हो सकता है। बट व्हेन यू हैव द काइंड ऑफ यू नो न्यू एंड न्यू, अब प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, मीनिंग भी डिफरेंट है, बट प्रोनाउंसिएशन सेम है। इसमें भी प्रोनाउंसिएशन सेम थी लेकिन मीनिंग डिफरेंट था, बट वर्ड भी सेम थे। यानी जब वर्ड सेम होगा और प्रोनाउंसिएशन सेम होगी लेकिन मीनिंग अलग होगा तो होमोनिम होगा। लेकिन जब वर्ड डिफरेंट होगा, मीनिंग तो डिफरेंट होना ही है, बट वर्ड डिफरेंट होगा बट प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, तो फिर हमें होमोफोन बोलेंगे क्योंकि फ़ोन वाला है। इसे थोड़ा सा यहाँ पर आई डिफर फ्रॉम व्हाट ही हैज़ बीन सेइंग इन दीज 3 लाइन्स। इसको आप इस तरीके से पढ़ें तो दैट विल बी बेटर फॉर यू इन एग्जाम, यू विल नॉट गेट स्टक। फ़ोन वाले में फ़ोन मतलब साउंड सेम होती है, वर्ड के स्पेलिंग अलग अलग होते हैं, बट निम वाले में स्पेलिंग भी सेम होते हैं, साउंड भी सेम होती है। वन कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। या थोड़ा सा हट कर है मेरा एक्सप्लेनेशन, इसको याद रखिएगा प्लीज़। देन पैटर्निटी, अब तो पेटर से आया है, समझ ही आ रहा है। फादरहुड, as to question someone's paternity, to file a paternity suit in order to collect child support from the assumed accused or self-acknowledged father। डिवोर्स के केस में, ऐसे केस में पैटर्निटी फाइल की जाती है कि ये बच्चा मैं लूँगा, मदर नहीं लेगी, ऐसे कोर्ट में चलते रहते हैं केसेस। द एडजेक्टिव इज पैटर्नल, फादरली। पैटर्नलिज्म इज द फिलोसफी ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्निंग, बहुत अच्छा लिखा है। पैटर्नलिज्म इज द फिलोसफी ऑफ और सिस्टम ऑफ गवर्निंग अ कंट्री or managing a business or institution so that the citizens, employees or the staff are treated in a manner suggesting children relationship। मतलब आप बिल्कुल उनको फादरली ट्रीट करते हो, आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी आपकी कंट्री के लोग हैं, ऐसे वाला आपका फादरली ट्रीटमेंट होता है, वो आपके बच्चों जैसे होते हैं। सच ए सिस्टम, फिर वो अपना एक बीच में लॉजिक डालता है। सच ए सिस्टम साउंड्स एंड ऑफन इज बिनाइन, बिनाइन इज़ वेरी काइंड एंड प्रोटेक्टिव। ऑब्वियसली जब फादर जैसे ट्रीट करोगे तो आप उसकी गलती में माफ़ कर दोगे, चल ठीक है, किसी को लोन चाहिए तो आप दे दोगे, ऐसे वाला बिनाइन एंड प्रोटेक्टिव। बट प्लेज हैवॉक विद द इनिशिएटिव, इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी ऑफ दोज इन सबॉर्डिनेट रोल्स। वो कहता है कि अगर आप ऐसा करोगे, एज फादरली ट्रीटमेंट करोगे, तो फिर क्या होता है कि सबॉर्डिनेट ज़्यादा काम नहीं करता, उसकी क्रिएटिविटी नहीं आती, बिकॉज उसके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं होता, ऐसा वाला। ये उसका अपना जजमेंट है, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो वो हैवक यानी वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, यानी आप उसके साथ खेल रहे हो कि वो बढ़िया परफॉर्म नहीं करेगा, ये ऐसा कहना चाह रहा है। बट एनीवे सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज पैटर्नलिज्म हो जाता है। फिर नेचुरली वो एडजेक्टिव जो होगा पैटर्नलिस्टिक हो जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड, कुछ ग्रेट नहीं है, वर्ड समझ आ रहा है, अगर आप याद रखेंगे तो आप उसे यूज़ भी कर पाएंगे, दैट इज़ द वे। एंड देन पैट्रियार्क, हमने पढ़ा है ना, मोनार्क, पैट्रियार्क, तो ऐसे ही तो हम देखें क्या पैट्रियार्क क्या है। ए वेनरेबल फादर लाइक ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन इन रूलिंग फादर लाइक पोजिशन। हेयर पेटर पैट्रिस इज कंबाइंड विद द वर्ड ग्रीक वर्ड आर्केन, मीन्स रूल होता है। तो हम बार बार कहते हैं मोनार्की आता है, पैट्रियार्की आता है, नहीं हायरार्की आता है। सारे वर्ड में आर्कीन वर्ड का यानी आर्की यूज़ हो रहा है, तभी तो वो यूज़ हो जाता है। द एडजेक्टिव इज पैट्रियार्कल, द सिस्टम इज पैट्रियार्की। तो हम कहते हैं कि इंडिया इज़ ए पैट्रियार्कल सोसाइटी, मीन्स क्या, पेटर और आर्की यानी जो मैन का रूल चलता है, यानी मेल डोमिनेंस हो जाती है। तो वैसे पैट्रियार्कल है, वैसे मैट्रियार्कल भी हो सकता है, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। देन पेट्रीसाइड, अब पेटर और साइड, यू नो द वर्ड साइड का मतलब क्या होता है, जिसका मतलब किल होता है, जो वर्ड साइडो से आया है। द एडजेक्टिव इज पैट्रीसाइडल हो जाएगा, ऑब्वियसली पेट्रीसाइड हो जाता है। दिस लिस्ट डज नॉट एग्जॉस्ट द नंबर ऑफ वर्ड्स बिल्ट ऑन पेटर फादर, बहुत सारे वर्ड हैं, ही सेज, ऐसा नहीं है कि 2-4 वर्ड बता दिए तो यही होंगे, बहुत वर्ड हैं, बट इज सफिशिएंट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ क्लोजली रिलेटेड मैनी इंग्लिश वर्ड्स आर। ये वर्ड्स कैसे रिलेटेड होते हैं। इन योर रीडिंग यू विल कम अक्रॉस अदर वर्ड्स कंटेनिंग द लेटर्स पेटर और पेटर, बाद में कई सारे वर्ड आएंगे। यू विल बी एबल टू वर्क दैम आउट वंस यू रियलाइज दैट द बेस इज द वर्ड फादर। आप जैसे ही वर्ड पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा यार क्या है, आप उसे वर्क दैम आउट कर पाओगे, आप उसे निकाल पाओगे ये क्या कहना चाहता है। ओके, यू माइट इफ यू फील एम्बिशियस पजल आउट द रिलेशनशिप्स ऑफ द फादर आइडिया इन द फॉलोइंग वर्ड्स, चेकिंग विद द डिक्शनरी टू सी हाउ गुड योर लिंग्विस्टिक इंट्यूशन।
अब आप देखें, डिक्शनरी देखे बिना आप देखें कि आपके लिंग्विस्टिक इंट्यूशन क्या कहती है, ये वर्ड क्या होगा। पैट्रिशियन मीन्स एन एरिस्टोक्रेट और नोबल पर्सन, पैट्रिशियन। देन पैट्रॉन, ए पर्सन हु गिव्स फाइनेंशियल और अदर सपोर्ट, एक कस्टमर भी होता है, पैट्रन हो जाते हैं। ठीक है, आप किसी का टीवी यूज़ करते हैं सोनी का, ये तो आप उसके पैट्रन हैं। एयरटेल के सिम यूज़ करते हैं, आप उसके पैट्रन हैं। ऐसे ही मतलब अल्टीमेटली आप उसे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो ना, वो पैट्रन हो जाता है। एंड देन पैट्रोनाइज करना, किसी को सुपेरिटी आप कंसिडर करते हो लेकिन उसकी हेल्प करते हो। किसी के मान लीजिए आप फीस दे रहे हो, किसी को पढ़ा रहे हो, तो आप उसके लिए पैट्रोनाइज कर रहे हो। ट्रीट विद एन अपेरेंट काइंडनेस विच बिट्रेज ए फीलिंग ऑफ सुपेरियरिटी, आप सुपेरियर नहीं दिखाते, बस ऐसा ही होता है। अब कई बार ये पैट्रोनाइज जो होता है, पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड भी हो जाता है, ये सुपेरियरिटी का वाले में यूज़ हो जाता है इसमें। फिर आप कहते हैं पेटर फैमिलियाज, पेटर फैमिलिया इज़ दी मेल हेड ऑफ ए फैमिली को बोलते हैं। पेटर और फैमिलिया है, बता ही रहा है। एंड देन पैटर और टाइटल ऑफ ए प्रीस्ट होता है। अब ये सारे वर्ड एक बार ही आपने पढ़ लिए हैं तो प्रॉब्ली एक आध दिन के बाद दोबारा पूछेंगे तो आपको क्लिक हो जाएगा, अगर ऑप्शन दे रखा होगा तो यू विल बी एबल टू हैंडल दैम ईजिली। दैट इज़ व्हाट इज़ ट्राइंग टू से कि अगर आपने पेटर देख लिया तो काफ़ी सारे वर्ड आ जाएंगे। लिंग्विस्टिक इंट्यूशन मतलब आपको क्लिक होता है नहीं होता है, आपने देख लिया आपको क्लिक हो गए होंगे। अगर आप वर्ड देखें तो शायद आपको समझ आ जाएगा पैट्रिशियन क्या है। अगर मैं देखूं तो पैटर्न समझ आ जाता है, फिर अगर देखूं तो पैटर्नाइज करना, पैटर्नाइजिंग करना, और पेटर फैमिलियाज एंड पेटर वर्ड आ जाते हैं। ओके, द ओल्ड लेडी नाउ, पेटर इज हिज फादर, तो मेटर इज हिज मदर, हमने वर्ड देख लिया। तो फॉर एग्जाम्पल मेट्रियार्क, जैसे पेट्रियार्क था वैसे मेट्रियार्क हो जाएगा। द मदर रूलर, द मदर पर्सन दैट कंट्रोल्स ए लार्ज हाउस होल्ड, ट्राइब और कंट्री। ओके, this word like patriarch is built on the root archane, to rule. During the reign of Queen Victoria, England was a matriarchy. Can you work out the adjective form? तो फिर matriarchal हो जाएगा, one can very well understand. तो maternity obviously motherhood होता है, and then maternal जो motherly होता है, ये तो आपको मालूम ही है, ये तो बोल बोल कर बड़े हुए हैं आप, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि कहाँ से आएगा, अब शायद आपको आ गया होगा वर्ड। ओके, देन मैट्रॉन, अब कई बार कहते हैं मैट्रन है, मैट्रन मतलब क्या, जो आपके हॉस्टल में होती थी। मैट्रन, एन ओल्डर वुमेन वन सफिशिएंटली मैच्योर्स टू बी अ मदर, इतनी मैच्योर होती है कि मदर तो होगी ही, ऐसा मान लेते हैं। द एडजेक्टिव मैट्रॉनली conjures up for many people a picture of a woman no longer in the low of youth and possibly with a bit of added weight in the wrong places, थोड़ा वेट होता है उसका, मतलब वेट पुट ऑन कर लिया होता है, वैसे यंग नहीं होती लेडी। सो दिस वर्ड शुड बी यूज्ड विथ कॉशन, ऐसे नहीं किसी के लिए बोलते हैं, थोड़ा मैच्योर बंदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट मे बी हजार्डस टू योर हेल्थ, अगर आप उल्टा सीधा बोलोगे तो फिर आपके लिए नुकसान हो जाएगा। इफ़ द लेडी यू आर सो डिस्क्राइबिंग इज़ ऑफ अ टेम्पेस्टुअस नेचर और इज़ ए विरागो, अगर आपने किसी यंग लड़की को ऐसा बोल दिया तो फिर देन यू विल हैव टू पे द प्राइस ही सेज। तो कॉशन कर रहा है, मैट्रन थोड़ा मैच्योर पर्सन के लिए, मैच्योर लेडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो नॉर्मली मदरली फिगर होती है। नॉर्मली मैट्रन हमने पढ़ा है, जब हम हॉस्टल में होते थे वहाँ मैट्रन होती थी, वो नॉर्मली स्टिक टाइप की मदरली नेचर वाली वैसी वाली होती हैं। ठीक है, सो alma mater is etymologically soul mother. Actually this alma mater is the soul mother, actually the school or college which one attended and which in a sense is one's intellectual mother. Obviously एक तो physical mother हो गया, फिर हम टीचर के पास गए, वो भी मेरी second mother ही हुई, और फिर जो स्कूल है वो भी कहीं ना कहीं मेरा क्या है, intellectual mother है, तो उसको हम alma mater कहते हैं। यानी जिस स्कूल जिस कॉलेज से आप पास हुए हैं उसको alma mater बोलते हैं, याद रखिएगा। कॉन्जर अप करना होता है आपके दिमाग में, काइंड ऑफ मैजिक से वैसे कॉन्जर अप किया जाता है, लेकिन हाँ जैसे आप सोते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज आ जाती है। जो मैजिशियन होते हैं वो कॉन्जर अप कर देते हैं, तो जो वो दिखाना चाहता है वही आप देखने लग जाते हैं। दे कास्ट स्पेल ऑन यू, दैट इज़ कॉन्जरिंग होती है, तो वहीं से कॉन्जर अप बनाए, यानी जो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर दे। मैट्रिमनी, अब देखिए वहाँ पैट्रीमनी पढ़ा था, तो पैट्रीमनी पेटर और मनी हो जाता है। आप कहेंगे ये माँ से मिली हुई मनी होगी, यहाँ थोड़ा सा खेल है, यही इंग्लिश का कमाल है और ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, समझ लेते हैं। मैट्रिमनी इज नॉट द मनी विच वी आर टेकन फ्रॉम मदर, मैट्रिमनी इज समथिंग एज मैरिज। ऑब्वियसली मैट्रिमनी होता है, मैट्रिमोनियल आपने पढ़ा है, तो मैट्रिमनी इज मैरिज।
Though this word is similar to patrimony in spelling, it does not refer to money as patrimony does, unless that is you are a cynical enough to believe that people marry for money. अगर आप ऐसा आपका दिमाग ही खराब हो और आप सोचे जी पैसे के लिए शादी होती है इसलिए मैट्रिमनी बना है, नो ऐसा नहीं है. As the language was growing, marriage and children went hand in hand. Marriage and children went hand in hand. Hand in hand मतलब closely associated थे. It is therefore not surprising that the word for marriage should be built on the Latin root for mother. Latin root का जो mother का word है उसी से हमने marriage वाला word बनाया था. Of course times have changed but the sexist nature of the English language has not. थोड़ी देर पहले मैं कह ही रहा था. The noun suffix money indicates states, condition or result as in sanctimony, parsimony, etc. The adjective is matrimonial हो जाएगा. Okay, so I have written the word sanctimony, morally superior, और देन पार्सिमनी इज़ बहुत ज़्यादा पार्सिमोनियस होता है, ज़्यादा खर्च करना चाहता नहीं है. तो यानी अब हमारा वर्ड क्या आया, मैट्रीमनी इज़ नथिंग लाइक मनी, लेकिन हमने माना है कि वो मैरिज से एसोसिएटेड है और वो चिल्ड्रन से एसोसिएटेड है, तो इसलिए हमने उसका वर्ड को मैट्रीमनी बना दिया है. देयर इज़ नथिंग टू डू विद दी मनी. तो मैट्रिसाइड जैसे पेट्रीसाइड था वैसे मैट्रिसाइड आ जाएगा. ओके, तो फिर उसका एडजेक्टिव निकालेंगे तो मैट्रिसाइडल हो जाएगा. Murder, most foul. Murder, unfortunately, is an integral part of human life. So there is a word for almost every kind of killing you can think of. Let's look at some of them. मतलब जो बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि वो कह रहा है कि ह्यूमन लाइफ का इंटीग्रल पार्ट होता है मर्डर. थोड़ा सा इंसेन स्टेटमेंट लगा, लेकिन मे बी ही सेइंग समथिंग. सुसाइड, ऑब्वियसली फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे मन में कभी आता है, हमने देखा होता है सुसाइड अपनी सोसाइटी में आगे पीछे, तो इसलिए शायद बोल रहे हैं इंटीग्रल पार्ट होता है. स्यू मतलब सेल्फ है, किलिंग वन सेल्फ. साइड मतलब स्यू टू वन सेल्फ हो गया, तो यहाँ से हमें मिल गया सुसाइड है. दिस इज बोथ द एक्ट एंड द पर्सन हु हैज़ बीन कंप्लीटली सक्सेसफुल इन परफॉर्मिंग द एक्ट, उसके लिए यूज़ करते हैं सुसाइड. एडजेक्टिव क्या होगा, सुसाइडल हो जाएगा. देन फ्रेटरीसाइड, फ्रेटर मतलब ब्रदर होता है, द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर. साइड मीन्स फ्रेटर एंड फ्रेटरिस इज ब्रदर, तो फ्रेटरिसाइड हो जाएगा. देन एडजेक्टिव इज फ्रेटिसाइडल हो जाना चाहिए. देन सोरोरिसाइड, सोरोरो इज यूज फॉर द वर्ड, सोरोरर इज फॉर सिस्टर, साइड इज फॉर किल. सो नाउ यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड सोरोरिसाइड क्या है. देन किलिंग ऑफ सिस्टर हो गया, एंड देन एडजेक्टिव सोरोसाइडल हो जाएगा. यू कैन अंडरस्टैंड देयर इज नथिंग ग्रेट इन दीज वर्ड्स, जस्ट हमने थोड़ा थोड़ा आइडिया ले रहे हैं. देखिए दिस चैप्टर इज लिटिल लॉन्ग, बट इफ यू जस्ट recap, you have learned a few invaluable words and they are there in your mind now. A homicide, what is homicide? The homi मतलब homos से word आया है, killing a human being. Side means this and homo means person. Homicidal act होता है किसी को मारना. In law, homicide is the general term for any slaying if intent and premeditation can be proved. अब ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा लिखा है. अगर मान लीजिए आपने प्लान करके किसी को किल करा है, if intent and premeditation can be proved, the act is murder and punishable as such. If no such intent is present, okay, the act is called manslaughter. By chance हो गया, आपका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, and receives a lighter punishment. Thus your mate, lover, spouse makes your life unbearable and you slip some arsenic into his or her coffee one bright morning. You are committing murder, that is if she is succumbs. Okay, अगर वो मर जाता है या मर जाती है तो आपने उसके अंदर वो डाला आर्सेनिक, कोई ऐसा केमिकल डाला, ठीक है. द केमिकल एलिमेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर 33 पॉइजनस होता है, तो वो मर गया, तो सकम कर गया, तो देन दिस मर्डर. ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू रन योर विक्टिम डाउन, मान लीजिए आपकी गाड़ी के नीचे आ जाए, आप बैक कर रहे थे, कुछ हो जाए, क्वाइट एक्सीडेंटली विद योर कार, बिसिकल और व्हील चेयर विद नो इंटेंट टू किल, यू विल बी एक्यूज्ड ऑफ मैनस्लॉटर. ओके, तो इंटेंशनल किलिंग इज किलिंग बट अदरवाइज इज मैनस्लॉटर. दैट इज इफ डेथ रिजल्ट्स एंड इफ यू कैन प्रूव यू डिड नॉट रियली मीन इट, आप ये प्रूव कर दें कि मेरे इंटेंशन ऐसा नहीं था. इट्स ऑल रादर डेलिकेट, हाउएवर यू माइट डू बेस्ट टू पुट थॉट्स ऑफ जस्टिफिएबल होमिसाइड आउट ऑफ योर माइंड. यानी आप ऐसा सोचिए मत कि मुझे कोई जस्टिफिएबल होमिसाइड करना है, वो कह रहा है यार फॉरगेट अबाउट दैट, लेकिन हमें सिखा रहा है. देन होमिसाइडल एक्ट हो जाता है, ठीक है. अगर आपको याद है तो
जब सलमान खान ने वो हैड दैट केस जिसमें उसकी गाड़ी चढ़ गई थी 7 लोगों के ऊपर, दैट इज़ दिस होमिसाइडल एक्ट। फिर रेजिसाइड हो जाता है। रेजिसाइड इज द किलिंग ऑफ अ किंग इज रेजिसाइड है। अगर आप देखें तो ये रीगल वर्ड से आया है, उसका एडजेक्टिव क्या होगा? रेजिसाइडल हो जाएगा। वन थिंग एस्टॉनिशिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ कि जो जलियांवाला बाग वाला जो एपिसोड हुआ, द ब्रिटिश हैव एक्नॉलेज दैट एज मैनस्लॉटर, दैट दे हैव नॉट रिकॉर्डेड एज मर्डर, समथिंग स्ट्रेंज। डेरिवेशन वो कहता है रेजिस से आया है, किंग से आया है, और साइड तो खैर आप जानते ही हैं किल आएगा, रेजिस रहता है। मैंने तो उसको याद कर रखा है ये रीगल है, तो रीगल से फिर याद होता है रेजिसाइड। वैसे राजा से भी याद कर सकते हो, राजा की किलिंग होती है, राजा की जरूरी नहीं होती, किंग और क्वीन की भी हो जाती है, बट हाँ रॉयल लोगों की किलिंग मानी जाती है। एंड देन एक्सोरिसाइड। एक्सोरिसाइड इज किलिंग ऑफ वंस वाइफ, एडजेक्टिव इज एक्सोरिसाइडल। डेरिवेशन हैज कम फ्रॉम द वर्ड, वाइफ के लिए वर्ड होता है एक्सॉर, यूज होता है, और फिर साइड तो आप जान ही गए हैं। नाउ मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड इज किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। ये नहीं सोचो कि सिर्फ वाइफ की किलिंग हो सकती है, हस्बैंड की किलिंग भी हो जाती है, तो मैरिटिसाइड हो जाता है, तो फिर मैरिटिसाइडल हो जाएगा। फिर रूट वर्ड वो होता है मैरिटिस, हस्बैंड के लिए यूज़ होता है, बाकी तो आप देख ही लेंगे। इन्फेंटिसाइड आपको सुना हुआ है हमने, इन्फेंटिसाइडल हो जाता है, इन्फेंट से आया है। एंड देन डेरिवेशन इज इन्फेंट्स, इन्फेंटिस बेबी के लिए यूज़ होता है, तो इन्फेंटिसाइड आ गया। Then genocide is come from the word gene, the killing of a whole race or nation. This is a comparatively new word coined in 1944 by a UN official named Raphael Lachman to refer to the mass murder of the Jews, Poles, etc. ordered by Hitler. Okay, Poles मतलब Polish people. Adjective is genocidal आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो शायद दिया होगा डेरिवेशन, वर्ड जेनोस से आया है, जीन से आप मान के याद रख सकते हैं, तो फिर आपको याद रहेगा, जेनोसाइड आ जाता है। एंड देन पैरिसाइड। पैरिसाइड इज द किलिंग ऑफ बोथ द पेरेंट्स। आप देखिए वर्ड में कहीं पैरी वाली, पैरी में पेरेंटल आ जाता है, एडजेक्टिव क्या है? पैरिसाइडल हो जाता है। वैसे तो ये पेरेंट्स की भी किलिंग मानी जाती है, बट ये क्लोज रिलेटिव्स की भी किलिंग मानी जाती है, पैरिसाइड आ जाता है। तो बुक्स में लिखा है किलिंग ऑफ बोथ द पेरेंट्स एंड किलिंग ऑफ क्लोज रिलेटिव्स इज नोन एज पैरिसाइड। पेरेंटल से निकल कर आ रहा है वर्ड, वन कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट। सो दैट्स ऑल वी हैव इन दिस सेशन 29 फॉर यू। दिस माइट बी a little longer session for you, but hope you have learned many good words and you just revise this once. I am sure that all words will be there in your memory forever. So kindly revise the exercise what we have after this, because now when I see the sessions, once we complete the session, there are long exercises he has given, because now you have learned so much. So he is giving you fabulous exercise afterwards, and if you are doing these exercises, I think you are cementing the language, cementing your learning that you have acquired so far in last 2-3 months since you have been doing these sessions with me. Thank you for watching. We'll meet you soon in session 30. God bless you.